Good afternoon, my dear students. I hope you all are fine and enjoying this English writing section class. Okay. Today we will move on to part 3 of writing section. Okay. Already I have finished part 1 and part 2. So today is the time for discussing this writing section part 3. Okay. So let's move on to a new slide. So I had in the last part 2, I had explained about tilde salutation. Okay. I had explained to you regarding sender's address, receiver date, receiver's address, subject and salutation. Okay. Now we will move on to the body part, main body of the relation. Okay. Main body of the letter. Okay. This part should be divided into 3 paragraphs. 3 paragraphs में इसको divide करना है. Okay. The body of this part I mean main body of the letter. Which letter? Formal letter. Letter to the editor. Should be divided into 3 paragraphs. 3 paragraphs में बांटना है, छोटे छोटे paragraphs. And all the words should combine into 100 words, not more than 100 words. 100 words के अंदर तुमको ये formal letter लिखना है. Okay? 100 words के अंदर. So लंबा नहीं करोगे. Simple sentences में लिखोगे. Okay? You write in short sentences, simple sentences. ठीक है? Para 1. Beginning through the editorial column of your esteemed newspaper. Beginning कैसे होगा? Beginning कैसे करना है? Through the editorial column of your esteemed newspaper. I wish to draw the kind attention of the concerned authorities regarding. मैंने बताया था किस प्रकार शुरू करना है. मैंने बताया था ना. I want to draw your attention towards the increasing crime in our city. ऐसा करके. ठीक है? तो ये भी वैसे ही है. वैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है. किससे शुरू करना है? थ्रू से. किससे? पैरा 1 में ऐसा शुरू करना है. कुछ और तरीका भी यूज कर सकते हो जैसे मैं बोला था. थ्रू द एडिटोरियल कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज रिगार्डिंग जो थीम है, जो थीम ऑफ द लेटर है उसको लिखना है. रिगार्डिंग द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स अमॉन्ग द स्मॉल किड्स. मैं तो बता दिया जस्ट. Fill in the blank. Clear? Regarding the increasing crime in our city. Subject कुछ भी हो सकता है. Theme, main idea को वहां लेकर आना है. Okay? पैरा 1 में बता दिया क्या लिखना है. पैरा 2 में आप आ जाइए. ठीक है. पैरा 2 is the middle paragraph must contain that. Para 2 is the middle paragraph. And it must contain all details, while the last paragraph must express what one would want the other person to do in the response of this letter. ठीक है. तो या तो 3 पैराग्राफ के भी हो सकता है, 4 पैराग्राफ के भी हो सकता है. तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. कम से कम 3 पैराग्राफ का फॉर्मल लेटर होना चाहिए. 3 पैराग्राफ का ही सही माना जाएगा क्योंकि 100 वर्ड्स में करना है. ठीक है. लेकिन 4 पैराग्राफ भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 3 पैराग्राफ में मेंटेन करो. Okay. The middle paragraph must contain all the details, while the last paragraph must express what one would want the other person to do in the response of this letter. ठीक है. मिडिल पैराग्राफ में क्या करना है? सारा डिटेल्स डालना है. ठीक है. और लास्ट पैराग्राफ जो है दैट मस्ट एक्सप्रेस व्हाट वन वुड वांट द अदर पर्सन टू डू. एक आदमी क्या चाहता है दूसरे आदमी से करवाना. मतलब मैं लेटर लिख रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं एडिटर से करवाना, दूसरे आदमी लोग कैसा करे. माने जो लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, बिहेवियर तो ठीक हो. ये कोरोना पैंडेमिक के समय क्या हुआ था, बहुत सारे लोग दे वर नॉट वेयरिंग मास्क. इसमें बहुत सारे एडिटोरियल कॉलम के द्वारा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया. उन्होंने लिखा एडिटर्स को कि ऐसा ऐसा हो रहा. तो एडिटर्स लोग ये सब चीज अवेयर क्रिएट करने के लिए अपने
कॉलम में, अपने न्यूज़पेपर के कॉलम में वो लोग छापे थे, ठीक है, तो लोगों ने याद दिलाई उनको। इसी प्रकार क्या करना है, डिटेल्स, यू हैव टू राइट द डिटेल्स फॉर द लास्ट पैराग्राफ। मिडिल पैराग्राफ क्या करना है, और सारे डिटेल रहना है। व्हाइल द लास्ट पैराग्राफ मस्ट एक्सप्रेस what one would want the other person to do in the response of this letter. Okay? Para 3. Para 3 में आ जाइए. I shall really be grateful, greatly thankful to you. अंत वाला पैराग्राफ में लिखना है, उसको धन्यवाद देना है, अभी उसको ग्रीट करना है, ठीक है, उसको अच्छे वर्ड्स में संबोधन करना है एडिटर को। कैसे? I shall be really grateful, greatly thankful to you for providing a relevant space to my concern in your prestigious newspaper. और मैं बहुत ही आपको धन्यवाद दूंगा, आपका जो स्पेस मेरे लिए थोड़ा सा जगह निकाल देंगे मेरे कॉलम को छापने के लिए, मेरे इशू को अगर छापने के लिए अपने न्यूज़पेपर में, तो मैं आपका आभारी रहूंगा। ग्रेटली थैंकफुल का मतलब आभारी रहना। हाँ, आपके प्रेस्टिजियस मीन्स फेमस, ठीक है, फेमस न्यूज़पेपर में अगर इस मेरे इश्यूज, मेरे प्रॉब्लम, मेरा मैटर छप जाए तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूं। नाउ यू सी, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पैरा 2 पैरा 3 एक साथ दिया था। अब कंप्लीमेंट्री क्लोज कैसे करोगे? देखो बेटा, उसको क्लोज कैसे करोगे? कोई भी फॉर्मल लेटर लिखोगे एडिटर को, उसको बंद कैसे करोगे? यू मस्ट रिमेंबर दैट। ओके, कंप्लीमेंट्री क्लोज आर द वर्ड्स रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर। कंप्लीमेंट्री मतलब कुछ ऐसा बात लिखोगे जिसे बंद करते वक्त जो इंप्रेसिव हो। सो कंप्लीमेंट्री क्लोज का सारे जगह एक ही रूल है, नियम है, और वही चीज हम लोग लगाते हैं। कंप्लीमेंट्री क्लोज आर द वर्ड्स रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर। लेटर का अंत में क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल थैंकिंग लिखते हैं ना, योर सिंसियरली ट्रूली, क्लास 9 में भी सिखाए हैं। हाँ, योर सिंसियरली ट्रूली। ओके, तो ये सिंसियरली ट्रूली ये कैपिटल लेटर में लिखो तो ज्यादा बेहतर है। ये इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली। ओके, लास्ट में कोई भी एक, योर सिंसियरली लिखो या योर ट्रूली लिखो, या ट्रूली योर्स लिखो, सिंसियरली योर्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सभी एक है। ओके, योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, इसके जगह योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल लेटर में भी फेथफुल लिख सकते हैं। ये स्मॉल लेटर कैपिटल दोनों चलता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर दिया तो स्मॉल ही फॉलो करो। ओके, योर्स फेथफुली भी। और जो एप्लीकेशन के लास्ट में जो स्टूडेंट्स लिखते हैं प्रिंसिपल को या टीचर, क्या लिखते हैं? योर्स ओबीडियंटली, वो भी फॉर्मल लेटर ही है। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, ठीक है, ठीक है, क्लियर? किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर दैट, आफ्टर द कंप्लीमेंट्री क्लोज नेम ऑफ द सेंडर इज मेंशन। और जहां हम लोग कंप्लीमेंट्री क्लोज करते हैं थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या योर ट्रूली बोलकर, उसके बाद क्या लिखा रहता है? नेम ऑफ द सेंडर। लेटर लिखने वाले, लेटर भेजने वाले का नाम लिखा रहता है, XYZ जो भी नाम रहे। ओके, ठीक है, लास्ट में XYZ जो भी नाम रहे लिखा रहता है। अब देखिए एक नमूना स्पेसिमेन है, लेटर का एक स्पेसिमेन है, क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को स्टडी करेंगे आप लोग, अभी मैं इसको पढ़कर सुनाऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। हाँ, ये अनसीन है, ठीक है, अननोन है। अनसीन पैसेज मालूम नहीं रहता कौन सा आएगा, ये भी अननोन ही है, ठीक है। यही नहीं कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। यू सी हियर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली। एक नेशनल न्यूज़पेपर का एडिटर को एक लेटर लिखना है, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, expressing your opinion and views on the increasing human dependence on technology right from a small child to an adult or even an old man.
देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक लेटर लिखना है एडिटर को, हाँ, नेशनल डेली, नेशनल न्यूज़पेपर है, बहुत सारे नेशनल न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, फेमस है जो कि, और अपने व्यूज, अपना ओपिनियन देना है कि लोगों का जो डिपेंडेंस है, निर्भरता ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर बढ़ जाता है, भले वो बच्चा रहे, स्मॉल चाइल्ड रहे, या एक एडल्ट रहे, या जवान व्यक्ति रहे, या एक बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो मोबाइल यूज करने में बहुत ही माहिर होते जा रहा है। मोबाइल पे डिपेंडेंस होने लगता है, मोबाइल के बिना वो नहीं रह सकता है। 70-80 साल के जो वृद्ध व्यक्ति भी जो कि है, उनको भी मोबाइल फोबिया हो गया है। ओके, तो एवरीवन वांट्स गैजेट्स ओनली, और सब किसी को क्या चाहिए, गैजेट चाहिए। कौन से गैजेट चाहिए, सेलफोन चाहिए, नहीं तो आईपॉड चाहिए, नहीं तो लैपटॉप चाहिए, हाँ, या तो कोई व्यस्त रहता है अपने आईपॉड से, आईफोन से, आईपॉड से, या लैपटॉप से, या फोन से, ठीक है। दिस ऑल्सो हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोशल रिलेशनशिप। इससे क्या है, सामाजिक जो संबंध है वो उसमें थोड़ा नुकसान होते गया है, ठीक है, बैड इफेक्ट होते गया है। देयर हैज बीन अ नेगेटिव इफेक्ट, ओके, नेगेटिव इंपैक्ट ऑल्सो ऑन सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक जो संबंध जो होते हैं उस पर भी असर पड़ा है, इसका बुरा असर पड़ा है, इसीलिए नेगेटिव इंपैक्ट बोला गया है। यूजिंग योर ओन आइडियाज, राइट अ लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स। अपने आइडियाज लगाकर एक लेटर लिखना है 100 to 120 वर्ड्स। तो इसमें एड्रेस नहीं दिया गया है, सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया गया है, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस भी नहीं दिया गया है, तुमको अपने से डालना होगा, ठीक है। कैसे, आगे बढ़ते हैं। See here, this is the example of a editorial letter. Means editorial letter क्या हुआ बेटा, लेटर टू द एडिटर को कहा गया है एडिटोरियल लेटर। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहां देखो एड्रेस 301 पीपी कॉलोनी, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप नहीं देना, कॉमा नहीं देना, कुछ ऐसे लिखते जाना है। और ये मार्जिन है, मानो नोटबुक का मार्जिन रहेगा, एकदम मार्जिन का वहां सीधा से लिखना है, मार्जिन से इधर उधर नहीं होना है, मार्जिन से सटना खाली नहीं है, बस एकदम पास से लिखना है। 301 देखो, सब देख रहे हो ना कैसा सीधा लिखा हुआ है, इधर उधर नहीं, मार्क्स लूज करोगे। 301 पीपी कॉलोनी, न्यू दिल्ली, ओके, 9 सितंबर 2021, ठीक है। सितंबर 2021, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। दिस इज सेंडर्स एड्रेस, क्लियर, सेंडर्स एड्रेस, सॉरी ये डेट को हटा देते हैं, डेट को लेट मी, ये दिस इज द सेंडर्स एड्रेस, दिस इज द सेंडर्स एड्रेस, दिस इज सेंडर्स एड्रेस। डेट को मैं गलती से ये कर दिया, सॉरी मर्ज कर दिया, दिस इज डेट। क्लियर होते जा रहा है क्या क्या देना है, हाँ। दिस इज द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली 100001। दिस इज रिसीवर्स एड्रेस या रेसिपिएंट्स, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस और रेसिपिएंट्स एड्रेस। किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया, हाँ। गलती नहीं हो करना है बेटा, एग्जामिनेशन में गलती नहीं करोगे। उसका बाद लिखोगे सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़कर, उसका बाद एक लाइन छोड़ना है, गैप, एक लाइन गैप छोड़ना है, ठीक है। उसका बाद लिखना है सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट में, ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। एकदम छोटा सा देख लिए, डिपेंडेंस ऑन, है ह्यूमन डिपेंड, क्या हम लोग देखे थे, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन ऑन टेक्नोलॉजी देखे थे ना, वही चीज को उतार देना है, ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। उसका बाद एक लाइन गैप देकर लिखोगे डियर सर। ये क्या है, ये सैल्यूटेशन है, और ऊपर वाला सब्जेक्ट है, ये सैल्यूटेशन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो एक लाइन गैप जो के शुरू करना है, ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां, ये क्या है, ये बॉडी ऑफ द लेटर,
बॉडी ऑफ द लेटर। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जितना लंबा बताएं वही जरूरी है, ऐसे ही लिखना जरूरी है, इट शुड बी करेक्ट। तो इसमें ऐसे कैसे शुरू किया हो, देखो शुरू कैसे किया हो देखो। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन। थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ everyone toward the increasing dependence of humans on technology। ये अपने मैं लेटर से मैं ये इच्छा जताता हूं कि सभी का ध्यान हम एक तरफ रखना चाहता हूं। कहीं आई मीन अटेंशन ऑफ एवरीवन, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन, सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां होगा क्या चीज की तरफ? टूवर्ड द इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमंस ऑन टेक्नोलॉजी, जो मानव का जो निर्भरता बढ़ते जा रहा है किस पे? टेक्नोलॉजी पर, उसके तरफ। वी यूज इंटरनेट फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू फाइंड ओनली अ क्लिक अवे। हम इंटरनेट का यूज करते हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जस्ट एक बार क्लिक करते हैं और हम यूज करना शुरू कर देते हैं इंटरनेट। एवरीवन वेदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट who wants gadgets like cell phones, iPod, laptop, etc. और everyone, हर कोई, या तो एक बच्चा हो या एक बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, उसको गैजेट्स चाहिए। कौन से गैजेट्स चाहिए? सेलफोन चाहिए, नहीं तो आईपॉड चाहिए, नहीं तो लैपटॉप चाहिए, जरूर चाहिए ही चाहिए। वही उनकी जिंदगी हो गई है, मोबाइल ही जिंदगी हो गई है हर किसी की। ओके, नो डाउट टेक्नोलॉजी इज अ बून टू मैनकाइंड। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, एक प्रकार का वरदान है, लोगों के लिए एक वरदान है। ठीक है, लोगों के लिए एक वरदान है। ठीक है, एंड हैज ए ग्रेट फ्यूचर अहेड, और एक बहुत बड़ा भविष्य है लोगों के लिए। बट इन माई ओपिनियन वी शुड नॉट डिपेंड ऑन इट, एज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन मेरे ख्याल से हमें टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि कोई भी चीज का अगर ज्यादा यूज करते हैं खराब है। हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं तो खराबी करता है कि नहीं? इसी प्रकार मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपॉड, ये सब का ज्यादा से ज्यादा यूज करने से दैट मे बी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, यही चीज बताना चाहते हैं न्यूज़पेपर के द्वारा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, और नेट वगैरह का यूज करने का कारण साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, सी हियर द लास्ट पैराग्राफ। वी मस्ट मेक जूडियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें सही तरह से यूज करना चाहिए टेक्नोलॉजी का, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज एक जस्टिस होना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से यूज करना चाहिए। मतलब इसका ऐसा नहीं कि हार्मफुल इफेक्ट पड़े, तो इसीलिए जूडियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है। एंड शुड नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन इट, और पूरी तरह से उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो बाइक से नहीं जाएगा, साइकिल से भी चले जाओ मार्केट। खाली बाइक से तुम जाओगे मार्केट साग सब्जी लाने, कुछ भी लाने, ये कोई जरूरी नहीं है, साइकिल से भी जा सकते हो। ओके, वही चीज कह रहा है। आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और अंत में ये पैराग्राफ खत्म, ये सेकंड पैराग्राफ हुआ। ठीक है, बॉडी का सेकंड पैराग्राफ हुआ, पहला पैराग्राफ रहा, देन उसका बाद सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है? मैं आशा करता हूं कि यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर न्यूज़पेपर। इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में आप संपादन करेंगे, जिससे कि ह्यूमन बीइंग, मानव का फ्यूचर ना बिगड़े, फ्यूचर बना रहे। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़कर, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, एस होगा, यहाँ छूट गया है, योर सिंसियरली, ये एस नहीं छोड़ना है बेटा, योर सिंसियरली XYZ, मैंने नाम लिख देना है। ठीक है, जब कोई नाम नहीं दिया तो अपना नाम देना है। ठीक है, याद रखना। सो इज इट क्लियर? सबको लेटर समझ में आ गया? तो राइटिंग सेक्शन का करीब करीब हम लोग पूरा कर लिए हैं। हाँ, बिजनेस लेटर के बारे में हम बताएंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर today's session, today's class. Thank you.